Good morning, students. Greetings from School of Open Learning. My name is Shali Khanna, and since I have been taking your classes from past 2 days, and this is our last class, so I'll be covering the topics which I left, as well as I'll be discussing about aggregate supply and aggregate demand. So let's get started. I do hope you are able to see the presentation which is here. Yeah. I've already covered the basic information about aggregate demand and aggregate supply in my first lecture, but I'll be doing the same with an extended version. So now let's get started. What do you mean by aggregate demand and aggregate supply? One second. Yeah. So aggregate demand and aggregate supply. What do you mean by aggregate demand? In microeconomics, we have studied demand means anything which a consumer desires to have. So this is an aggregate demand. Aggregate demand means we are talking about the macroeconomic concept. Aggregate demands relates to total demands of goods and services produced in an economy for consumption, investment, government, and net exports. We have already discussed that aggregate demands has four components: consumption, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, investment, as well as net export. So this is the same, but we are doing income and employment method of Keynes. So we're discussing aggregate demand, and here the components will be consumption, investment, government, and net exports. So AD is equals to C plus I plus G plus net exports. Net exports means excess of exports over imports. So the difference between the exports and import is called net exports. I hope you're clear with the definition of aggregate demand. Aggregate demand is the total demand of goods and services produced in an economy for consumption, investment, government, and net exports. Entire demand. Okay. Now the aggregate supply. Aggregate supply refers to total value of goods and services produced in an economy. द इंटायर गुड्स एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर उसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे. इसको हम टोटल आउटपुट भी बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. नाउ वी नो aggregate demand is represented by C plus I plus G plus net exports, and AS, that is aggregate supply, is represented with the letter Y. Y means income. Now at the equilibrium level, if we plot the diagram of aggregate demand as well as the income, we'll get an equilibrium point at which E. Now I know you are not you're not familiar with this diagram before, and you don't know how is aggregate demand turning out to be at point M and not at point 0. I'll be discussing in a few slides after this, but just look at the diagram. In this diagram, you can see there is an aggregate demand curve which is starting from M, and there is an aggregate supply curve which is Y, and this Y curve is 45-degree angle. Always remember, aggregate supply curve is 45-degree line. If you will not draw 45-degree line, it will not be considered an aggregate supply. Aggregate supply is 45-degree line because income is either consumed or is spent. So amount of income consumed and spent. So one side is 45 degrees consumed and 45 degrees spent. So we are considering the income to be 45-degree line. And that is an aggregate demand. अब equilibrium level पे ऐसा होगा, aggregate supply will be equal to aggregate demand. If aggregate supply and aggregate demand will not be equal, any excess of aggregate demand or aggregate supply will affect the inventory level. Let us say if there is an excess of aggregate demand over aggregate supply. If the demand is more as compared to supply, we can say that people are demanding much more than which is being produced. So inventories will run out of the stock. As a result, the price level will rise, leading to corresponding point at E.
And similarly, if the aggregate demand is less than aggregate supply, then firms will be overstocking its inventories. If the firms will be overstocking its inventories, then the point will be below the E. That is, it will be plotted by zero, matlab zero, M and E. This point will be the amount of inventories which is increasing because aggregate demand is more than aggregate supply, and the point above E, at that point the inventories level will be lessening its produced output. So at only point E, the equilibrium level will be maintained. Otherwise, below E price level बढ़ता जाएगा and after E price level कम होता जाएगा क्योंकि inventory का stock बहुत ज़्यादा है and there is no demand. So this is the first equilibrium level का method, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. This is known as aggregate demand and aggregate supply approach. And second method is saving and investment approach. Savings and investment approach, it can be easily calculated and numerically also it can be expressed as AD equals to AS. और we are considering only two sector model, तो हम AD के अंदर government और net exports को include नहीं करेंगे. We are considering only C plus I, that is consumption and investment is equals to consumption plus savings, जो AS का है, and consumption and consumption are cancelled, then we get I is equals to S, that is income, that is investment is equals to savings. Now, this is also an equilibrium level. So any point where there is the disequilibrium between investment and savings will in turn affect the aggregate demand and aggregate supply approach. Economy will not function at a point where the investment will be more or savings will be more, as the point given by Kejid. If this disequilibrium will be there in the market, then the price level will rise and corresponding effects on the inventories which has been seen above will be witnessed again. For example, if the investment will be more than savings, then aggregate demand will be more than aggregate supply. If the demand is more than aggregate supply, then price level will rise, leading to corresponding rise in the price level and inflation in the economy. And similarly, if the aggregate supply will be more than aggregate demand, or savings will be more than investment, so people are not spending much, they are savings. If they are saving, then aggregate supply is quite high as compared to demand. And if this is the situation, then price level will fall. So I hope the equilibrium level is quite clear. We have talked about aggregate demand. Aggregate demand is the total demand for goods and services produced in an economy for consumption, investment and government, as well as net export. AD equals to C plus I plus G plus net exports. Aggregate supply. Aggregate supply is the total value of goods and services produced in economy. It is also known as total output, which is represented by Y. So S is equals to Y. At the equilibrium level, we have talked about two approaches, that is aggregate demand and aggregate supply approach, as well as saving and investment approach. Aggregate demand and aggregate supply approach equilibrium corresponds to point E, which can be seen in the diagram on the left side. If any point at which AD will be more than aggregate supply, demand will be more than supply. So firms will not be in the capacity to produce more. As a result, the price level will rise, and corresponding this point can be seen as OME. That is at this triangle reflecting OME is the point at which aggregate demand is more than aggregate supply, and point beyond E reflects aggregate supply is more than aggregate demand. So point above E will leads to overproduction, and point this is less production, leading to rise in the price level, and automatically the price level will shift upwards. And similarly, if the point is beyond E, then it will lead to fall in the price level as companies are overstocking their products, and due to which the price level will fall in the economy. And second approach we talked about was savings and investment approach. At savings and investment approach, we can calculate numerically also, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. Aggregate demand का formula हो गया C plus I. This is closed economy, so only C plus I, not government and net exports. Aggregate supply के अंदर आ गया C plus S, because income is either consumed or saved. That is why the aggregate demand, aggregate supply curve की line 45 degree पे थी.
So consumption से consumption cancel हुआ and we got income. Investment is equals to savings. So equilibrium level दो तरह से होगी, दो approaches हैं, aggregate demand and aggregate supply, savings and investments. Now let us consumption function. If we talk about consumption function, we can see, we have already seen, but consumption function में दो तरह की consumption थी. कंजम्पशन कैसी थी, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी और एक इंड्यूस कंजम्पशन थी. और ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो लेवल ऑफ कंजम्पशन होती है एट विच इनकम लेवल इज जीरो. In spite of the fact income is zero, consumption can never be zero. For example, some of you might not be earning right now. You might not be having income by this time period, but is your consumption level zero? No, your consumption level is not zero because probably you're getting money from the parents, and similarly consumption किसी की भी zero नहीं होती. Even the beggars have their consumptions. So consumption level is never be zero. Consumption level is never be zero. And it is not related to income level. And induced consumption is related to income. As the income level goes up, correspondingly, consumption also rises. अब consumption function का एक equation है. Equation is consumption equals to C dash plus BY. C dash refers to autonomous consumption, as we have discussed कि जिस point पर income level zero होगा, तो this is autonomous consumption, plus BY. B means MPC. MPC means the change in consumption due to change in income. For example, earlier you are consuming, earlier your consumption was 50 and your income was 100. Now your consumption moves to 100 and your income moves to 200. If you calculate the difference, that is 50 और 100 हुआ consumption, that is 50 का difference, और income हमारी difference हुआ 100 का, क्योंकि 100 200 minus 100 we got 100. और MPC के अंदर हम क्या करते हैं, change in consumption. Change in consumption कितना था, 50 divided by 100, we got it as 1/2. So MPC हमारा आ गया 1/2. MPC reflects कि consumption किस level पर change हो रही है जैसे जैसे income increase हो रही है. We understood 2 points in the consumption function, that is autonomous consumption and induced consumption. Autonomous consumption refers to the consumption which occurs even if the income level is zero, and induced consumption is consumption which is dependent upon the income level. As the income level increases, the consumption also rises. Now we can see the diagram. On the right hand side, we can see there is break-even point, which is refers to as B. This break-even point will occur at a point where the autonomous consumption equals hogi income ke. That is, there will be no BY, or the point in easy terms you can say the consumption will be equals to income. There is no savings. Is that clear? Below B, all the triangles showing zero, C and B, this point reflects consumption जो है autonomous है, and after B the consumption is autonomous as well as induced. I hope this is clear. Consumption function का formula हो गया, C is equals to C dash plus BY. Autonomous consumption को हम denote करते हैं C dash से, और B को हम denote कर रहे हैं MPC से, that is marginal propensity to consume, which means change in consumption due to change in income. और एक MPC, एक APC भी होता है. APC is the ratio of consumption to income. अगर हम कंजम्पशन और इनकम की सिर्फ रेशियो लिखे, फॉर एग्जांपल योर कंजम्पशन इज 50 एंड योर इनकम इज 100, इफ वी डिवाइड 50 by 100, दिस इज APC. MPC means change in consumption due to change in income. If earlier your consumption was 50, then it spikes up to 100 as your income level increases from 100 to 200. Now income में change कितना आया, 100 का, as the income levels moves up from 100 to 200, and consumption level के अंदर जो change हुआ वो 50 से 100 का हुआ, 50 का change आया. So if we divide 50 by 100, we get it MPC.
I do hope this is clear. Now we are moving further. That is saving function. Now, what do you mean by savings? I already told you that is income is either consumed or is saved. The amount of income which is not consumed is saved. The amount, and we can see this is what is written in the first line, that amount of income which is not spent is saved, as income is either saved or consumed. Now savings are directly proportional to income. ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे कोई autonomous savings exist करे, but autonomous consumption जरूर exist करती है. So savings जो होंगी वो सारी induced हैं because it is related to the income, directly proportional to income. As the income level increases, the savings also increases. So now we can see the saving function. Saving का फॉर्मूला वही हुआ कि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और इज सेव्ड. तो जो इनकम कंज्यूम्ड नहीं हुई इट इज सेव्ड. अब हमने कंजम्पशन में जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था सी डैश प्लस बी वाई का, सी डैश प्लस बी वाई को प्लॉट कर दिया, पुट कर दिया. इसको पुट करने के बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल हमारे पास जो इक्वेशन आई वाई सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. अब 1 माइनस बी, अभी पीछे हमारे पास आ रहा था सिर्फ b और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस बी. 1 माइनस बी रेफर्स टू MPS और 1 माइनस MPC, और ये प्रॉपर्टी होती है MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1 एंड APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1. दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1 एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1. सो 1 माइनस बी है दैट इज 1 माइनस MPC दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज इक्वल्स टू MPS. तो ये MPS हमारा आ गया फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड वी हैव अंडरस्टूड कि सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन है वो है S इज इक्वल्स टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट y. 1 माइनस बी मीन्स MPS और इसके अंदर भी APS होता है. APS रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम. फॉर एग्जांपल अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो गया 100 से 200 और सेविंग्स हमारी इंक्रीज हो रही है 20 से 30, तो सेविंग्स के अंदर कितना डिफरेंस है 20 30 10 का डिफरेंस हुआ सेविंग्स. और सिमिलरली इनकम के अंदर कितना डिफरेंस है 100 से 200, तो डिफरेंस हुआ 100. सो इफ विल डिवाइड 20 बाय 100 वी विल गेट MPS. Is it clear? Now looking at the diagram on the right side, we can see 45-degree line है which is called aggregate supply. Aggregate supply के साथ हमारा यहाँ पर, और हम इसको Y भी बोल सकते हैं. Now we have seen there is a curve which is plotted by C. C जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है. कंजम्पशन फंक्शन मैंने भी पीछे भी बोला था, अगर ये B पॉइंट से ऊपर की लेवल की कंजम्पशन होगी मतलब ऊपर बढ़ेगा तो इनकम लेवल इंक्रीज करेगी कंजम्पशन से ज्यादा, बट उससे पहले इनकम जो है वो नेगेटिव है एंड कंजम्पशन इज मोर. तो उससे पहले डिसेविंग्स होगी जहाँ पे जिस पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी इनकम इंक्रीज होनी शुरू होती है more than consumption. So we are able to save. And this point of savings can be seen by the diagram below. That पहले हमारी dis savings थी, now we have savings. Make sure you plot this diagram. Make sure you draw this diagram as well as consumption function का diagram if the question is asked in your exams. Now let's talk about investment function. Investment के बारे में हम 2 दिन से already पढ़ रहे हैं. I do hope कि आप लोग irritate ना हो गए, but investment function हमारा क्या था? Investment function is related to income and rate of interest. अगर हमारा rate of interest बढ़ेगा तो लोग जो है investment नहीं करेंगे. अगर लोग investment नहीं करें तो वो कहाँ अपने पैसे डालेंगे? मनी डिमांड के अंदर भी हमने कल पढ़ा था कि they will speculate their money और keep it their money और पैसे लगा देंगे बॉन्ड मार्केट के अंदर या स्पेक्युलेटिव मार्केट के अंदर. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ये बेसिक चीज तो समझ आ गई. इन्वेस्टमेंट में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट में बी इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस वही जिससे मतलब इट इज नॉट related to the income level कि income level कितना चल रहा है या rate of interest कितना चल रहा है, it will not be related to that. And induced investment will be related to the income and rate of interest.
with the change in income. That's why it's called income elastic. Induced investment is always income elastic, and autonomous investment is never income elastic. It is income inelastic. Autonomous investment is not sensitive to change in income. It is influenced by the rate of interest. इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इन्वेस्ट अगर हमारी वो कम होगा तो ज़्यादा होगी. आई होप दिस इज क्लियर. इट इज रिवाइज वंस व्हाट वी हैव स्टार्टेड, दैट इज क्योंकि आगे हमको ये मतलब बहुत ज़रूरत है इस इक्वेशन को याद करने की ढंग से. तो एग्रीगेट डिमांड हुआ हमारा टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हुआ C + I + D + नेट एक्सपोर्ट. एग्रीगेट सप्लाई हुआ हमारा टोटल आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम लेवल. Move further, इक्विलिब्रियम लेवल. इक्विलिब्रियम लेवल की दो अप्रोचेस हैं. दो अप्रोचेस कहते हैं इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. दो अप्रोचेस हैं. फर्स्ट अप्रोच है AD और AS अप्रोच. AD अप्रोच कहते हैं, AD अप्रोच के अकॉर्डिंग वही है C + I + D, और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर Y. इक्विलिब्रियम लेवल पे AD विल बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई विच इज Y. जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन aggregate supply or the level of output in the economy. तो अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो inventories will run out of the stock and the price level will rise. And if the income level is more than aggregate demand or the aggregate supply is more than aggregate demand, we can see that कि यहाँ पर situation वो arise हो जाएगी जहाँ पे inventories will accumulate stock और the stock will rise when factories or the factories will get burdened with the stock. So due to which क्या होगा, हमारी इन्वेंट्रीज जो है ओवर स्टॉक कर जाएंगी, प्राइस लेवल फॉल कर जाएगा. सो देयर हैज टू बी इक्विलिब्रियम दैट इज AD इक्वल्स टू Y. और दूसरी अप्रोच थी हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती है कि AD इक्वल्स टू AS होता है, और इफ विल कैलकुलेट द अकॉर्डिंगली दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स. Now let us look at consumption function. Consumption function is positively related to income. और कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज अ कंजम्पशन व्हिच एग्जिस्ट इवन इफ द इनकम लेवल इज जीरो, एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज अ कंजम्पशन व्हिच इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. एज द इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन आल्सो राइजेस. इसके अंदर हमको पता लग गया C इज इक्वल्स टू C डैश प्लस BY. C डैश जो हुआ वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ, प्लस BY, B इज द MPC. MPC और APC के अंदर यही डिफरेंस है कि इसके अंदर हम रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम लेते हैं, बट उसके अंदर हम चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम लेते हैं. और इस डायग्राम के अंदर हमने ये भी देखा था, देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज एट BE. एट दिस पॉइंट इनकम लेवल इज जीरो. Income level is exactly equals to the consumption, and beyond that point the consumption not increases as much that income is increases, so we get to save. And below point B there is autonomous consumption only and income level is negative, which leads to dis savings. Dis savings can be seen from the diagram in the right. This savings वो point होगा जहाँ पे income level will be negative and consumption level will exist, or the autonomous consumption level will exist. Saving function हमको बोलता है कि income is either consumed or is saved. If the consumption is not consumed, then it comes in savings. So savings का वही formula हुआ S is equals to Y minus C. और savings के अंदर हमने Y minus C dash minus BY कर दिया. और सेविंग्स इज इक्वल्स टू आगे फर्दर सॉल्व किया तो माइनस C डैश प्लस 1 माइनस B ब्रैकेट Y माइनस C डैश हुआ, दैट इज माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और 1 माइनस B मींस 1 माइनस MPC इक्वल्स व्हिच इज इक्वल्स टू MPS. आई होप दिस इज क्लियर. इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट भी हमारी दो तरह की होगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट लेवल हमारा इंक्रीज करेगा अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड.
अब जो हमने पीछे इक्वेशन करी थी, दैट इज AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, उसके अंदर से हम एग्ज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट जीरो। अब इकोनॉमिक्स में हम बार बार एज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए, तो अब इसके अंदर हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम कोशिश करें कि G और नेट एक्सपोर्ट्स को जीरो रखें, इकोनॉमी को क्लोज रखें और देखें हमारा मल्टीप्लायर क्या आता है। तो AD इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट भी एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑटोनॉमस है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो हमने तीन चीजें एज्यूम करी है, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स दोनों जीरो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स, और दूसरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही एग्जिस्ट करती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं एग्जिस्ट करती। तो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। AD के अंदर जो हम C कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, C डैश प्लस BY प्लस इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ऑटोनॉमस है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डैश लगा देंगे। देखो पहले एक चीज समझ लो, इन दिस macroeconomics we have two kinds of variables, endogenous variables and exogenous variables. Endogenous variables वो variables हुए जो जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं इनसाइड फैक्टर्स, और एक्सोजेनस वेरिएबल वो वेरिएबल्स हुए जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं या जो इन्फ्लुएंस होते हैं आउटसाइड फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल C डैश, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, it is therefore not an endogenous variable, it is an exogenous variable. Similarly autonomous investment भी जो है वो endogenous variable नहीं हुआ, वो exogenous variable हुआ। तो जितने भी autonomous investment और consumption है उनको हम A से डिनोट कर रहे हैं और उसके अंदर ही डाल रहे हैं। A के अंदर आ गया autonomous investment भी और autonomous consumption भी, तो हमने A को डिनोट कर लिया C डैश और CY से। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे सिचुएशन क्या है, तो Y इज इक्वल्स टू C डैश और I डैश को हमने A लिखा है प्लस BY एज इट इज ऊपर से नीचे आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू Y। अब अगर हम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आंसर मिला 1/1 माइनस B इंटू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वही C डैश प्लस I डैश। तो एग्रीगेट डिमांड का आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसके थ्रू हमने ये इक्वेशन निकाली कि Y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस B इंटू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। This formula will be very useful for the upcoming slides. अब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं। कल हमने क्रेडिट क्रिएशन की बात करी थी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर जब हमारा इनकम लेवल इंक्रीज होगा विच लीड्स टू फर्दर इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, और जो इनकम लेवल इंक्रीज होगा इट विल बी अफेक्टेड, और जो मतलब उसके अंदर जो रिजल्ट हो रहे हैं जो अफेक्ट करेगा उसको एक वेरिएबल, वो होगा MPS या MPC। MPC कैसे करेगा, कल हमने फॉर्मूला देखा था क्रेडिट क्रिएशन जब हम कर रहे थे, उसके अंदर एक 10,000 का अमाउंट था, उसके अंदर से हम कुछ अमाउंट रिजर्व करते थे और बाकी 10% हमने रिजर्व किया, तो 10,000 का 10% इज 1,000 और उसके अंदर बाकी हमने आगे लैंड कर दिया 9,000। बैंक्स ऐसे करते थे और 9,000 को फर्दर आगे आगे करते करते हम लैंड कर देगा, और जब हमने एंड में जाके देखा तो एंड में वी कुड मेक आउट दैट जो हमारा इनकम लेवल जो था वो इंक्रीज हो रहा था क्रेडिट क्रिएशन की वजह से, और वो जो इंक्रीज था इट वाज डिपेंडेंट अपॉन CRR रेशियो। अब मल्टीप्लायर के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन की, तो यहाँ पर जो जितने लेवल पे इनकम इंक्रीज होगी इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन MPS की वैल्यू, MPC की वैल्यू कितनी है। अगर MPC की वैल्यू लेट्स से 75% है तो हम 75% कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी हम आगे सेव कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना होगा 75%। सो वी कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपीज की तो इंक्रीज इन इनकम 100। अब हमको पता चला कि हमारा कंजम्पशन का जो पॉइंट था दैट वाज 3,
3/4, 3/4 मीन 75%. 75%, अब 100 में से हमने 75% इंक्रीज इन कंजम्पशन हुआ और ये कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, इट फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम. सिमिलरली 75, 75, 75 ऐसे ऐसे करते करते वी गॉट टू नो दैट जो हमारा इनकम लेवल है वो बढ़ गया 500 से, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी सिर्फ 100 और कंजम्पशन बढ़ गई हमारी 400 से. So I do hope this multiply concept is clear. Multiply के अंदर हम दो formulas हैं हमारे. एक formula तो ये कहता है कि पहले definition बढ़ता है. Investment increases productive capacity, which in turn raises the level of output, employment and income. When the investment increases by certain amount, aggregate income is increased by multiple of that investment. So multiply का formula हुआ change in income due to change in investment. यहाँ पे हम investment कर रहे थे 100 की, जिसकी वजह से income के अंदर change आया 500. यही multiply का concept है and it was further dependent upon MPC कितना है, that is marginal propensity to consume कितना कर रहे हैं हम. So therefore एक formula और भी है, K is equals to 1/1 minus MPC, which is equals to 1 minus MPC. पीछे भी हमने देखा था, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि MPC plus MPS is equals to 1, तो हम 1 minus MPC की जगह 1/MPS भी लिख सकते हैं. So I do hope ये क्लियर हुआ मल्टीप्लायर का कंसेप्ट. और पीछे जो हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनॉमस वेरिएबल्स लिए थे जिसके अंदर एंडोजेनस और एक्सोजेनस का कॉन्सेप्ट था, आई डू होप वो भी क्लियर हुआ. एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने एज्यूम किया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और नेट एक्सपोर्ट जीरो है और उसके साथ हमने एज्यूम किया कि हमारी इन्वेस्टमेंट में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हमने आई डैश कर दिया. जो भी चीजें ऑटोनॉमस हैं, ऑटोनॉमस मीन्स दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम and it is affected by the outside variable. For example, autonomous consumption जो है वो income level से तो affected है नहीं, तो फिर वो किससे affect, तो वो outside factor से affected है. So therefore हम उसको autonomous बोलते हैं. और autonomous investment, इन दोनों को क्लब करके हमारा आया autonomous expenditure, जिसको हमने A से denote किया. तो Y is equals to A plus BY. Solving for Y, we got the formula 1/1 minus B into A. ये 1/1 minus B ही हमने मल्टीप्लाई में यूज किया. 1/1 minus MPC, मल्टीप्लाई का लास्ट फॉर्मूला 1/1 minus MPC. कंजम्पशन फंक्शन में मैंने बताया था C dash plus BY, तो ये भी वही है. तो ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर. अभी तक हम गवर्नमेंट सेक्टर को जीरो लेकर चल रहे थे और नेट एक्सपोर्ट्स को हमने इंक्लूड ही नहीं किया था. अब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम लेवल इन टू वेज. हाउ गवर्नमेंट विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल? इट विल अफेक्ट इट इन द टू वेज. या तो वो परचेज करेगा गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट भी तो परचेज करती है गुड्स और सर्विसेज. और दूसरा मेथड होगा टैक्सेस और ट्रांसफर्स. गवर्नमेंट ट्रांसफर्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडीज दे देगी या फिर टैक्सेस लगा देते हैं. टैक्सेस और ट्रांसफर्स हमारा इनकम लेवल को अफेक्ट करते हैं. तो गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को दो तरह से अफेक्ट करती है, परचेजेस ऑफ गुड्स एंड बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स व्हिच अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनकम. ये दो मेथड समझ आ गए कैसे गवर्नमेंट हमारे इक्विलिब्रियम लेवल को अफेक्ट करती है, या तो परचेज करेगी या टैक्सेस और ट्रांसफर्स लगाएगी. डिस्पोजेबल इनकम जो होती है इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम. हमने पढ़ा होगा 12th क्लास में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बार बार निकालने को बोलता था. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती थी इट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड और सेव्ड. जो नॉर्मल इनकम होती है उसके अंदर से टैक्सेस और ट्रांसफर्स करते हैं. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अर्निंग, तो उनको पहले बोलते होंगे कि हमारी इनकम इतनी है, बट जब बाद में पैसे मतलब सपोज किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ विल पे यू दिस मच, बट जब सैलरी हाथ में आती है देन इट्स क्वाइट लेस. व्हाई इट इज लेस? बिकॉज इट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर्स ऐड होते हैं और टैक्सेस माइनस होते हैं. So now let us look at the equation which is on the right side. Aggregate demand को अब हम तीन सेक्टर मॉडल के अंदर ले रहे हैं.
ये 3 सेक्टर मॉडल काफी बार एग्जाम्स के अंदर आ भी रखा है कि पूछते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सप्लेन करो यूजिंग 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हम नेट एक्सपोर्ट्स को नहीं लेंगे और सिर्फ 3 वेरिएबल लेंगे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सिर्फ यही लेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये 3 सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल नहीं है, ओपन इकोनॉमी नहीं है अभी। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, वही हमने यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने को भी आएगा एग्जाम के अंदर तो पहले यही फॉर्मूला लिखेंगे, एडी के 3 कंपोनेंट हुए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। कंजम्पशन के अंदर कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे, गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है इक्विलिब्रियम लेवल को 2 तरह से अफेक्ट कर रहा है, विच इज परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स, वो एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ लेट अस लुक एट द इक्वेशन ऑन द राइट साइड। एडी बोल रहा है इक्वल हुआ C प्लस आई प्लस डी, आई इसके अंदर अभी भी हमने इंड्यूस को 0 लिया हुआ है और सिर्फ ऑटोनॉमस लिया हुआ है, तभी आई के ऊपर डैश है। तो AD इक्वल्स टू आया, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला था C डैश प्लस बी वाई। अब हमने यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड किया है तो हमारी इनकम पे टैक्सेस लग रहे हैं और ट्रांसफर्स भी लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे YD लिखा है। तो YD को अगर हमको कन्वर्ट करना है इनकम के अंदर तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस को प्लस कर देंगे और ट्रांसफर्स को माइनस कर देंगे, और प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज ऑल्सो ऑटोनॉमस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनकम लेवल से तो इन्फ्लुएंस है नहीं, जो गवर्नमेंट परचेजेस करे गुड्स एंड सर्विसेज वो किसी इनकम लेवल से तो इन्फ्लुएंस है नहीं, इट इज ऑल्सो एन एक्सोजेनस वेरिएबल एंड इट इज नॉट एन एंडोजेनस वेरिएबल, इसलिए इसके अंदर जी के ऊपर भी डैश है। अब हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हुए जिसके ऊपर डैश है, दैट इज C डैश, I डैश और G डैश। इनको हमको तीनों को हम ले रहे हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिलेटेड टू इनकम। तो ट्रांसफर्स के ऊपर भी डैश आ गया, प्लस C डैश प्लस I डैश प्लस G डैश इज इक्वल्स टू A डैश। अब हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर यही सारी चीजें पुट करी तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A डैश प्लस C ब्रैकेट 1 माइनस T इंटू वाई। 1 माइनस T क्योंकि हम टैक्सेस अभी भी माइनस कर रहे हैं, टैक्सेस इज रिलेटेड टू इनकम लेवल ऑल्दो ट्रांसफर्स इज नॉट रिलेटेड। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा, AD इक्वल्स टू Y होगा और Y के अंदर इक्वल कर देंगे A डैश प्लस C 1 माइनस T इंटू वाई। तो Y इज इक्वल्स टू हो गया ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 माइनस C ब्रैकेट 1 माइनस T। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये Y की इक्वेशन एंड दिस Y की इक्वेशन? इस Y की इक्वेशन के अंदर हमारी इक्वेशन सिर्फ ये थी 1/1 माइनस B इंटू A। इस इक्वेशन के अंदर वी हैव Y इज इक्वल्स टू A डैश अपॉन 1 माइनस C ब्रैकेट 1 माइनस T। I do hope this is clear. ये जहां पर C लिखा है ना, that is A डैश प्लस C ब्रैकेट 1 माइनस T, इसको ये C को B कर दो क्योंकि this is MPC only। जो MPC हम इन्फ्लुएंस कर रहे, MPC जो इन्फ्लुएंस कर रहा था कंजम्पशन लेवल को, कंजम्पशन फंक्शन 2 ही फंक्शन होते हैं, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है और एक इंड्यूस कंजम्पशन होती है। तो C डैश प्लस B Y प्लस ट्रांसफर्स माइनस टैक्सेस प्लस I डैश प्लस G डैश, यही B यहाँ पे गलती से C लिख गया है। तो A डैश प्लस B 1 माइनस T ब्रैकेट Y और AD को हमने बाद में कैलकुलेट किया तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था 1/1 माइनस B इंटू A और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया A डैश अपॉन 1 माइनस B इंटू 1 माइनस T। 1 माइनस T किसकी वजह से हुआ, टैक्सेस की वजह से। सो आई डू होप ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्लियर हुई है। अब देखते हैं हम गवर्नमेंट की मल्टीप्लायर। अभी हमने नॉर्मल मल्टीप्लायर देखा था जो कि कंजम्पशन लेवल से इन्फ्लुएंस था और इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लुएंस था। अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करती है। लेट्स से गवर्नमेंट जो है मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करती है 3 तरह से। चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेजेस हो सकती है, ये चेंजेस इन ट्रांसफर्स, ये चेंजेस इन इनकम टैक्स।
अगर गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ जाएंगी तो हमारा क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी के अंदर गवर्नमेंट बढ़ रही है तो फिर एडी भी बढ़ जाएगा, विच विल फर्दर लीड्स टू राइज इन इनकम लेवल, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन करके चलना है। तो गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर देखते हैं कैसे अफेक्ट करता है हमारे इनकम लेवल के ऊपर। तो इसके अंदर अभी हम केस ले रहे हैं जहाँ पे हम चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेजेस ले रहे हैं और चेंजेस इन ट्रांसफर्स और इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करें। एक चीज देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इनकम लेवल के ऊपर। So consider first case government purchases where the initial level of income is YD. An increase in government purchases is a change in autonomous spending and therefore it will shift the aggregate demand schedule upward by the amount equals to increase in the government purchases. और इस अमाउंट से इंक्रीज होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। एट द इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम the demand for goods exceeds output and correspondingly firm will expand production until the new equilibrium level is reached in the economy. By how much does income expand? Recall the change in equilibrium income will equals to aggregate demand. अभी हमने पीछे निकाला था कि y dash is equals to change in government plus c bracket 1 minus t into change in y. ये c वही MPSE है क्योंकि स्मॉल c से डिनोट किया हुआ है। काफी बुक्स के अंदर ये ए से भी डिनोट होगा, स्मॉल ए या फिर सी डैश या फिर बी या फिर सी। ये स्मॉल सी है इसलिए इसका मतलब MPC ही है। जो यहाँ पे पीछे यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन करी थी बी और सी की, तो ये भी बी है। वेयर द रिमेनिंग, यहाँ पे हमने वो ये एज्यूम किया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है और ट्रांसफर्स जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये कांस्टेंट रहेंगी। दस द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज change in income equals to 1 upon 1 minus c upon 1 minus t into change in government spending. This is what the government multiplier is, कि गवर्नमेंट के अंदर परचेजेस होंगी तो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। ये हमने अभी पीछे यहाँ पर भी देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर अगर परचेजेस सेक्टर इंक्रीज, गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस कैसे करेगी आउटपुट लेवल को। आउटपुट लेवल को इन्फ्लुएंस ऐसे ही कर रही है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 upon 1 minus c और t minus s 1 minus t। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं इनकम लेवल, इट विल लीड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर चेंज हो रही है उसकी वजह से इनकम लेवल भी चेंज होगा, बट कितना, ये इतना ही होगा 1 upon 1 minus c 1 minus t। यही है मल्टीप्लायर गवर्नमेंट का। Let us look at this diagram and it will be more clear. हमने यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट जो है अपनी परचेजेस इंक्रीज करे। If the government is increasing its purchases तो हमारा AD जो है वो शिफ्ट हो गया AD डैश पर। अगर हमारा AD जो है AD डैश पर शिफ्ट हो गया तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी शिफ्ट हो गया E से E डैश पर, क्योंकि इसी पॉइंट पर Y जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, विच इज A डैश माइनस A, where we have introduced this to denote the multiplier in the presence of income taxes, और हमारा multiplier हो गया 1 upon 1 minus c 1 minus t. This is the multiplier in case of government.
Hello. I do hope now you can hear me clearly. Sorry, there was some disturbance on my side. Let's continue where we were. We were discussing गवर्नमेंट मल्टीप्लायर. गवर्नमेंट मल्टीप्लायर डिस्कस करने के लिए हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे 3 तरह से इन्फ्लुएंस करती है फिस्कल वेरिएबल को, और वो 3 वेरिएबल्स से change in government purchases, change in transfers and changes in the income tax. अगर हम चेंज परचेजेस हो रही है तो वो चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेस विल इन टर्न इफेक्ट द इनकम लेवल. और गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर चेंज कितना इफेक्ट करेगा इनकम लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड इनकम लेवल कितना मतलब ये कम हो रहे के अंदर जो मल्टीपल फोर्स के अंदर इंक्रीज कर रहे थे इनकम को. तो नाउ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के अंदर भी यही है कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर विल इंक्रीज मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ इनकम. गवर्नमेंट के अंदर अगर परचेजेस गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से मल्टीप्लायर जो चेंज होगा, चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1/1 minus c and 1 minus t. दिस इज द मल्टीप्लायर फॉर्मूला. Now we can see in the गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की डायग्राम के अंदर कि AD जो है वो इंक्रीज हो गया A डैश पर. अगर A डैश तक इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम लेवल हैज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम E to E डैश. E to E dash इंक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज जो है दिस इज द चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेस, और विच इज डिनोटेड बाय 1/1 minus c 1 minus t. किसी जगह कहीं जगह c लिखा है, कई जगह b लिखा है, हो सकता है आपकी बुक्स में a भी लिखा हो एंड स्मॉल a. ऑल दिस मीन्स marginal propensity to consume. And this is also the same. अगर हमारी गवर्नमेंट परचेजेस कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे इनकम लेवल को, तो 1/1 minus c bracket 1 minus t. Now look at tax multiplier. टैक्स मल्टीप्लायर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? अगर हमारी इनकम के ऊपर टैक्सेस लगते हैं तो हमारी इनकम जो है कम हो जाती है. अगर टैक्स रेट बढ़ जाए तो इट विल फर्दर डिटोरिएट द लेवल ऑफ आवर इनकम. सिमिलरली अगर टैक्स रेट कम हो जाए तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी. So now let us discuss the effect of decrease in the tax rate. अगर हमारा टैक्स रेट जो है कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि if the income level will increase then it will lead to corresponding increase in the aggregate level. or we can say that कि टैक्स का मल्टीप्लायर कम हो रहा है. यहाँ ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड के इक्वेशन में 1 minus t था, अब यहाँ पे which was already negative भी कम हो गया. E dash. ये E to E dash अंदर शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम लेवल मूव्ड फ्रॉम E to E dash, रिजल्टिंग टू इंक्रीज इन द इनकम और द आउटपुट लेवल. Equilibrium level of income is y dash. To calculate the change in equilibrium income, we calculate the change in income to the change in aggregate demand. The change in aggregate demand has two components. First, the change in spending. At the initial level of income that arises from tax cut. This part is equals to marginal propensity to consume out of disposable income. The change in the disposable income due to the tax cut. The second component is the change in the aggregate demand, is the induced spending because the higher income. This is now evaluated at the new tax rate and the value is therefore is. अब हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट क्या करेगा. Change in income is equals to minus c y change in taxes प्लस c 1 minus t और change in y. इसके अंदर कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ रहा है
in y is equals to c upon y0 1 upon 1 minus c 1 minus t into t dash. अगर इसको सिंपल तरह से कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला जो था पीछे से सिर्फ 1 को माइनस कर दो, 1 को माइनस करोगे दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा और कि नेगेटिव क्यों आ रहा है. सो दिस इज क्वाइट सिंपल कि टैक्स मल्टीप्लायर कैसा आया. टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये है कि कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इनकम लेवल को. तो चेंज इन इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, सी अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सी 1 माइनस टी डैश. दिस इज व्हाट द टैक्स मल्टीप्लायर इज. सिंपल तरह से कैलकुलेट करना है तो ये गवर्नमेंट मल्टीप्लाई के अंदर से 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी कर दो तो इसमें भी आ जाएगा. पर उसमें सिर्फ इतना आएगा, टैक्सेस मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे अगर टोटल फॉर्मूला पूरा निकालना है तो 1 माइनस करने से हमारा ये आएगा माइनस सी अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी डैश. So I do hope this is clear. Now let us revise once. हमने डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. Aggregate demand, spending and net export. Aggregate demand का formula हुआ C plus I plus D plus net exports. Aggregate supply हुआ total value of goods and services produced in an economy. It is also known as total output, which is represented by Y. Equilibrium level दो cases है जहाँ पे AD equals to X equals to investment हुआ. अगर कोई भी डिसबैलेंस होगा इकोनॉमी के अंदर तो इन्वेंट्री इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहेगा ई. और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा है, अगर इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सेविंग्स तो मतलब कि डिमांड जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई. अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइस लेवल विल राइज. एंड सिमिलरली अगर हम सेव ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड. अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो प्राइस लेवल विल फॉल बिकॉज इन्वेंट्रीज इज ऑलरेडी फुल ऑफ स्टॉक्स. Let us look what is consumption function. Consumption function में हम दो indicators देखे थे, that is autonomous consumption, induced consumption, autonomous consumption. Side of the fact when income is zero, the consumption level will play. As the income level spikes up, it will lead to more increase in the consumption, but consumption will not be more than income. Once it crosses break-even point, you can see Y is quite above and C is quite below after the break-even point. Before the break-even point, ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई बिकॉज एट दिस पॉइंट इनकम है ही नहीं एंड कंजम्पशन सिर्फ है, तो इस पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और इसके अंदर हमने एमपीसी और एमपीसी और एपीसी देखा है और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि एपीसी प्लस एपीआई इज इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1. पेमेंट फंक्शन के अंदर वही हुआ कि इनकम इज ईदर consumed or is saved, or the income which is not consumed is calculated as saved. तो का फॉर्मूला हुआ सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई और एस इज इक्वल्स टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई. और 1 माइनस बी जो हुआ वो हमारा एमपीएस है और इसके अंदर एपीएस लिखा है दैट इज सेव्स टू इनकम. यहाँ पे ये वाले चैप्टर के अंदर डायग्राम्स बनाने बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू डायग्राम थ्रू आउट द स्लाइड्स. इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की हुई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. अगर हमारी इंड्यूसमेंट है इट इज रिलेटेड टू द इनकम लेवल और द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर ऑटोनॉमस है देन इट इज नॉट
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कम हो रहा है, बिकॉज फर्म्स आर नॉट स्पेक्युलेटिव मच, और द वंस which are holding cash, they are not speculating. If the interest rate is well, they'll prefer to invest it in their safe bonds. अगर interest rate बढ़ गया तो उनको profitability की chances ज़्यादा है, so they will speculate their money. Or speculate bond market, security market, goals purchasing, and this is what is investment function is. Now let us talk about aggregate demand. ये हम इसलिए calculate कर रहे हैं ताकि हम देखें अगर एक भी फैक्टर हाउ विल इट इफेक्ट इनकम लेवल. तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स को नहीं लिया और इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंड्यूस नहीं लिए, लिए. तो AD इक्वल्स टू C प्लस आई, C का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A प्लस B/, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो Y आ गया इक्वल्स टू 1/1 minus B, which is A. How is affected by income? How is investment affected by income? If the investment spikes up, investment is increased, it leads to multiple increase in the income and corresponding increase in the consumption level as well. And it is depending upon the level of what is MPC is. Multiply the formula over change in income divided by change in investment. That is, कितनी investment बढ़ेगी इनकम भी बढ़ेगी. इसके काफी बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने के लिए कभी हमको चेंज वाई दिया होता है या MPC दिया होता है. अगर कुछ भी दिया हो तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल. अगर सपोज MPC हमको दिया है 75%, 75% का मतलब हुआ 0.75, तो 1 माइनस 0.75 करेंगे तो कितना हुआ 0.25. अब 1 को डिवाइड करेंगे 0.25 से विल गेट 4, तो मल्टीप्लायर इसमें आ गया 4. And similarly, अगर हमारे पास change in Y और change in I दिया है तो we can easily calculate what is multiplier is. और it is look government sector, government कैसे influence करेगा income level को? How will the income will generate through the government purchases, taxes और transfers. ट्रांसफर्स और परचेजेस में दोनों तरह से सेम लेवल पर ही इंक्रीज होगा. जैसे हम यहाँ पे परचेजेस क्या देख रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम और इनकम अलग अलग होती है. डिस्पोजेबल इनकम के अंदर हमारी इनकम में से टैक्सेस माइनस हो चुके होते हैं और ट्रांसफर प्लस हो चुके होते हैं. तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करके देखेंगे. तो एंड के अंदर हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू A डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस C, 1 माइनस C. गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकल के आ गया 1/1 माइनस C, 1 माइनस T. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज. और गवर्नमेंट अलग तरह से और इन्फ्लुएंस करती है इनकम लेवल को. कैसे चेंज इन गवर्नमेंट ये चेंजेस इन इनकम टैक्सेस. अगर उसने गवर्नमेंट ने इनकम टैक्सेस को कम कर दिया देन वी कैन इजीली सी कि टैक्स मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट होगा. गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए देन एग्रीगेट डिमांड को विल शिफ्ट अप और उसका स्लोप चेंज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम लेवल इज शिफ्टिंग फ्रॉम E to E dash. As a result, the output level is expanding. और ये output level कितना expand करेगा? It can be explained with the help of the numerical the equation which we have solved. और कितना effect करेगा? Change in y is equals to minus c और y0 divided by 1 minus c, 1 minus t dash into change in taxes. और अगर इसको easy तरह से कैलकुलेट करना है तो ये वाली पीछे वाली इक्वेशन में से 1 माइनस कर दो. Now let us look about what is IS curve. ये IS curve वही है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और स्लाइड्स भी वही है, वर्ड्स भी वही कोट की है. बस मुझे इसके अंदर एक्सप्लेन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन एक्सप्लेन करनी थी. तो IS curve shows the combination of income and interest rate such that AD is equals to national output. IS कर्व हमको वो सारे कॉम्बिनेशंस बताएगा जहाँ पे इनकम और इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट करेंगे बट जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और नेशनल प्रोडक्ट इक्वल होंगे. IS curve is downward sloping curve. When interest rate falls, investment demand increases with effects consumption and national income.
there exists inverse relationship between rate of interest and income. Commodity market clear at I is equals to S. अब हम देखते हैं एडी को 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि C प्लस I प्लस D हम नेट एक्सपर्ट्स नहीं ले रहे। ये अभी हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पे ट्रांसफर्स आ गए प्लस C ब्रैकेट 1 माइनस T Y प्लस I डैश माइनस BI प्लस G। ये चीज मेरे को बतानी थी कि इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होता है I माइनस B स्मॉल I हुआ, I डैश हुआ autonomous investment which is not affected by income and rate of interest minus BI, I small I का मतलब हुआ rate of interest. Rate of interest बढ़ेगा तो investment कम होती है, इसलिए इसके बीच में माइनस का साइन है because this is negatively related to investing function. तो अब हमने I की जगह पे पुट किया है I डैश माइनस BI। बहुत देर से ऑटोनॉमस ले रहे थे ना, अब हमने इंड्यूस भी डाल दिया इसके अंदर। तो इंड्यूस डालने के लिए हमने क्या किया, I डैश माइनस BI और C डैश का तो वही फॉर्मूला पहले से ही जो चल रहा था, वही 1 माइनस ट्रांसफर्स कर रहे थे और माइनस टैक्सेस कर रहे थे। ट्रांसफर्स को हमने बाहर लिया तो प्लस C ब्रैकेट 1 माइनस T इंटू वाई प्लस I डैश माइनस BI प्लस G डैश। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंड में आंसर्स आया A डैश जो हुआ जिसके अंदर हम एक्सोजेनस वेरिएबल को इंक्लूड कर लेंगे which is included in transfers and investment and government spendings। अब उसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया y माइनस BI। ये हो गया हमारा AD कर्व। तो अगर हमको I अंदर इक्विलिब्रियम लेवल कब एग्जिस्ट करेगा, जब AD इक्वल्स टू Y होगा। हम यहाँ पे Y भी देख पा रहे कि A डैश प्लस C डैश Y इज माइनस BI। इसको अगर हम कैलकुलेट करें then we'll get what is the IS कर्व की इक्वेशन। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हमारी कंजम्पशन लेवल ये है, टैक्सेस ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, इंटरेस्ट रेट ये है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड और इनकम लेवल को कैलकुलेट कर लेंगे। इस लेवल पे हमारी इंटरेस्ट रेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी है हमारा मतलब ये सॉल्व करने के बाद वो आएगी इंटरेस्ट रेट और इनकम की फॉर्म में। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे IS कर्व हम बात कर रहे हैं गुड्स मार्केट के अंदर। IS कर्व हमको बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सच दैट AD इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे इक्वेशन के अंदर भी हमने AD इक्वल्स टू Y किया है और Y इक्वल ही आया है ऑटोनॉमस स्पेंडिंग प्लस C डैश Y माइनस BI। और इस कर्व के दो फंक्शन से इन्फ्लुएंस होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिवली रिलेटेड टू होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और ऐसी सेविंग फंक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ इनकम। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता गया और इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ती गई तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारी सेविंग्स भी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएंगी, which further गिव्स अस द हाईएस्ट कर्व which is downward sloping. If the rate of interest falls, the investment increases. If the investment increases, the income increases through the multiplier. Y has to increase, that is income has to increase to ensure that sufficient savings is generated at the new level of investment. So there is inverse relationship between rate of interest and income. I hope this is clear. एक बार दोबारा देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल सेक्टर मॉडल लिया था AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस D। I के केस के अंदर हमने जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जो हमने फंक्शन लिया है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन हुआ I डैश माइनस BI। I डैश का मतलब हुआ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस BI। I का मतलब स्मॉल I का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिलेटेड टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कम हो रही है वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ गया है, लोगों ने पैसा कहीं और लगाना शुरू कर दिया। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, दे आर स्पेकुलेटिंग देयर मनी। सो अब हमने AD के थ्रू Y के इक्वल रखे, हमारे पास इक्वेशन आ गई A डैश प्लस C डैश Y माइनस BI इक्वल्स टू Y। ये हमारी IS कर्व की इक्वेशन है which is very crucial for calculating numericals.
साइज कर्व हमने दो फंक्शन क्यों देखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन। ये दो फंक्शन को अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास साइज कर्व डाउन स्लोपिंग आ गया। डाउन स्लोपिंग इसलिए आया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम है। नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम कैसे है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो गया तो सेविंग लेवल भी कम हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो सेविंग भी बढ़ जाएगी। इस कर्व के अंदर हमने बढ़ाई हुई है सेविंग्स, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है और सेविंग्स बढ़ रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आईएस कर्व भी फॉलिंग है। If the rate of interest falls, the investment increases. If the investment increases, the income increases through the multiplier. Income has to increase to ensure that sufficient saving is generated to balance the new level of investment. So there is an inverse relationship between rate of interest and income. अब factors determine करते हैं IS के slope को। IS के स्लोप को फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे, दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट इलास्टिक कितनी है इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो हाउ मच द इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। इफ द इंटरेस्ट is perfectly elastic with investment, so a small drop in rate of interest will lead to large increase in investment and correspondingly larger increase in income. और दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आईएस कर्व को वो है एमपीएस। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व या फिर मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम। स्लोप ऑफ द एमपी आईएस कर्व आल्सो डिपेंड्स अपॉन सेविंग फंक्शन, whose slope is MPS. The higher the MPS, the steeper will be the IS curve. स्टीपर का मैंने पहले ही बताया था, स्टीपर मींस दिस और दिस मींस फ्लैटर, स्टीपर मींस दिस। तो जितना ज्यादा एमपीएस बढ़ता जाएगा आईएस कर्व का स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं एलएम कर्व की। एलएम कर्व, अभी हमने पीछे बात करी थी आईएस कर्व की। आईएस कर्व जो थी वो गुड मार्केट के अंदर थी, और एलएम कर्व जो है वो है मनी मार्केट के अंदर। एलएम कर्व जो इन्फ्लुएंस करती है उसके अंदर मैंने बताया था 2 दिन से कि जो मनी डिमांड है वो 3 ट्रांजैक्टरी मोटिव पे डिपेंडेंट होती है, प्रिकॉशनरी मोटिव, ट्रांजैक्टिव मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ट्रांजैक्टिव मोटिव पे डिपेंडेंट होती है तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ट्रांजैक्शन भी ज्यादा करेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव पे कुछ डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि हम इनकम वैसे ही सेव कर रहे हैं फॉर मीटिंग कंटिजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और स्पेकुलेटिव जो है वो किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर स्पेकुलेटिव रेट ऑफ से रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं डिमांड ऑफ मनी इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एल विच इज इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड हुआ कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हम ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हुआ तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो rate of interest से negatively relate हुआ। Now look at the formula on the right hand side. L equals to I K Y minus H I. K और H जो है वो coefficients हैं, तो coefficients के ऊपर इतना ध्यान मत दो, बस ये याद रखो कि Y प्लस में है और I माइनस में। तो L equals to Y minus I, और इसको इक्वेशन में प्लॉट करना था इसलिए हमने K और H के फैक्टर्स लिए। अब मनी डिमांड का ये फॉर न्यूमेरिक मतलब इक्वेशन आ गई कि L इज इक्वल्स टू KY माइनस HI। Y क्यों आया, क्योंकि Y जो है इनकम जो है डिपेंडेंट है अपॉन ट्रांजैक्टरी मोटिव। अगर हमारी इनकम इंक्रीज कर गई तो हम ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे। स्पेकुलेटिव मोटिव पे डिपेंडेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अब हमारी इक्वेशन ऐसी होगी कि मनी मार्केट के अंदर मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई होना चाहिए। अगर हमारा मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई है तो मनी सप्लाई जो है वो रियल प्राइस लेवल, जैसे मैंने बताया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होता है नॉर्मल, हमको जीडीपी लेवल बताता है, और जो हमारा वो है रियल जीडीपी जो है इट इज एडजस्टेड फॉर द प्राइस लेवल, तो हमको वो प्राइस लेवल एडजस्ट करके बताते हैं। नाउ अगर हम मनी सप्लाई को डिवाइड कर देंगे प्राइस लेवल से, ये हमारा हो गया रियल बैलेंस। नाउ मनी डिमांड को इक्वल करना है मनी सप्लाई के, तो हमारी इक्वेशन वही M by P equals to KY minus HI। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारी इक्वेशन आ गई I equals to 1 minus H K और KY minus MP। अब
अब ये दो इक्वेशंस आ गई, LM कर्व की इक्वेशन आ गई और RLS कर्व की इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन जो थी I और Y के इन्फ्लुएंस में थी, मतलब I और Y जो थे वही फैक्टर्स थे। इसके अंदर भी CY है और -BI है और इसके अंदर भी I है। अभी I की वैल्यू अगर हम अंदर पढ़ देंगे तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितना इनकर हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसका आंसर आ जाएगा। LM कर्व हम देख सकते हैं कि अगर मनी डिमांड जो है बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा LM कर्व जो है इट इज पॉजिटिवली स्लोप। LM कर्व जो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग LM कर्व की स्लोप, अगर हायर लेवल ऑफ इनकम है डिमांड कर्व फॉर द मनी विल बी हायर, और सेकंड फैक्टर बोलता है स्लोप ऑफ LM curve elastic or responsiveness for demand changes with respect to interest rate. Lower the elasticity for speculative motive with respect to changes in rate of interest, the steeper will be the LM curve. इंटरेस्ट इलास्टिक जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टीपर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट will be high and LM curve will be flatter or less steeper. So I do hope this is clear. एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चंस 8D के क्वेश्चन हमने 3 सेक्टर मॉडल लिया था, इसलिए C+I था +D और इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट का फंक्शन पुट किया है। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होता है I minus B स्मॉल I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। I डैश का मतलब हुआ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस BI का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इस को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है A डैश प्लस C डैश Y माइनस BI इक्वल्स टू Y। दिस इज द IS कर्व। और LM कर्व के अंदर हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, मनी डिमांड शुड बी इक्वल्स टू मनी सप्लाई। अगर मनी डिमांड कैसे होती है, मनी डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स, ट्रांजैक्टिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्टिव मोटिव इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम लेवल। अगर हम इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी तो विल डू मोर ट्रांजैक्शंस, सो देयरफॉर मनी डिमांड का जो फर्स्ट वेरिएबल हुआ L के साथ वो है Y। स्पेक्युलेटिव मोटिव कर रहे हैं तो स्पेक्युलेटिव मोटिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इट इज नेगेटिवली रिलेटेड। सो मनी डिमांड के अंदर L का फंक्शन हुआ Y विच इज पॉजिटिवली रिलेटेड, R हुआ नेगेटिवली रिलेटेड। अब इसकी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं L इज इक्वल्स टू KY माइनस HI, जिसके अंदर Y पॉजिटिवली रिलेटेड है और I नेगेटिवली रिलेटेड है। I नेगेटिवली रिलेटेड है इसलिए नेगेटिव का साइन है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर भी नेगेटिव का साइन था ना, I डैश माइनस B स्मॉल I, तो ऐसे इसके अंदर भी नेगेटिव का साइन है बिकॉज इट्स नेगेटिवली रिलेटेड। तो मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज डिनोटेड बाय M, बट M को हम प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए हम M अपॉन P लिखेंगे बिकॉज इट अफेक्ट्स रियल बैलेंस। और अगर हम इसके इक्वल रख के हम ये इक्वेशन को सॉल्व करें देन विल गेट I। बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब कोएफिशिएंट्स हैं। जो हमारी इक्वेशन आई है वो I और Y की वेरिएबल की फॉर्म में है। जब हमारा न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हमको H की वैल्यू दी होती है, K की वैल्यू दी होती है, मनी सप्लाई की वैल्यू दी होती है और प्राइस लेवल की वैल्यू दे रखी होती है। एंड में हमको निकालना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और इनकम। और सिमिलरली इसके अंदर भी हमको यहाँ पे सारी चीजों की वैल्यूज दी होगी। व्हेन विल सॉल्व इट न्यूमेरिकली जो हमारा आंसर हमें निकालना है वो है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आई डू होप दिस इज क्लियर। Now I'll be taking break for 2 minutes. At that time, you can post your question